Hello and welcome to SOT Talkies. In the history of communication, one thing played a phenomenal role to reshape the communication as we know it today, and that one thing is blogs. But over the years, we have seen that blogs are probably dead or they are on the deathbed. Today, we have a blogger with us who has been one of the most followed bloggers of Pakistan, who has been part of various blogs of that time, be it Karachi Met blog, be it Park Tea House, or his own blog, Deadpan Thoughts. We have Faisal Kapadia with us. Faisal, कैसे हैं आप? I'm good, Rai. How are you doing? I'm very well, thank you. So हमारा टॉपिक है दैट्स डेथ ऑफ ब्लॉग्स. तो अभी मुझे बताइएगा एज ए कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी एंड एज ए ब्लॉगर भी कि पाकिस्तान में इस वक्त ब्लॉगिंग का क्या सीन है. Sir, I think blogging shifted to short form blogging about 5 or 6 years ago. With the advent of Twitter and its popularity and short form messaging becoming all the rage, plus the visual narrative being taken over by Instagram and TikTok, long form blogging in its original form all but vanished. Just like print. The first thing to die was print and print articles. I'm sorry अगर मेरे fellow journalists को नाराज होते हैं इस बात से, but that was the first thing to go all over the world actually. And then it came to long form blogging, which is basically just now regarded as articles online. तो वो जो पूरा जो फिनोमिना था ब्लॉगिंग का वो सारा सीन जो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया. So you were once a very prominent blogger in this whole scene. आपके you won a couple of awards as well. So can you take us back to that golden era of blogging and what made blogs so impactful at that time in that late 2000s and early 2010s? Right. So I actually started out with Karachi Metro blogs, as you know. There was a platform which bloggers used to blog on about their city, and I started off with that. And then I was writing blogs for chalk.com. At that time, blogging was a very social networking kind of place where all these disruptors and technology enthusiasts and different kinds of bloggers would get together. If you remember, we used to have a lot of blogger meetups as well. And then it branched out into commercial and corporate, and then people started getting hiring to do blogs, and they were hired to do food blogging or movie blogging, and all of that happened. And with the advent of commercialism in the sphere, the community aspect of it started dying. फिर कम्युनिटी ब्लॉग्स दूसरे भी बने बहुत सारे. कराची फूड डायरीज एन एग्जांपल ऑफ देम, SWOT इज अनदर एग्जांपल ऑफ देम. और ये आहिस्ता 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 स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स शॉर्ट फॉर्म ब्लॉगिंग. तो वो फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म ब्लॉगिंग वो रिव्यूज की तरफ चला गया. तो रिव्यूज छोटे से छोटे होते रहे, और फिर रिव्यूज जो है वो पिक्चर्स और एक पैराग्राफ तक महदूद रह गए. तो वो जो ज़माना था वो ज़माना कुछ और था. वो ज़माना था जब पीपल यूज्ड टू do community blogs and people used to engage in blogging because they were interested in getting their viewpoint across. उस जमाने में बहुत सारी सर्विसेज नहीं होती थी, आपको पता है. इंस्टा भी इस तरह का नहीं था, ठीक है. ऑर्कट होता था, एंड ICQ होता था, ट्विटर भी नहीं था इस तरीके का. एंड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट बैक देन. सो things change over time. I guess things evolve, people evolve, and people switch to short form blogging. But yeah, that was a time in which people used to love to read. They used to love to read proper blogs and proper well researched blogs. And citizen journalism was all the rage at that time. But वो आहिस्ता 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 वो जो है ना proliferate और dilute होके short form में आ गया. So this is how it happened. By the way, I still write. मेरा एक सवाल है इसके ऊपर. तो जो आपने सिटीजन जर्नलिज्म की आपने बात की, तो डू यू थिंक के लॉयर्स मूवमेंट प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन ब्रिंगिंग दोज सिटीजन जर्नलिस्ट इनटू दिस थिंग बिकॉज टीवी बैन था, प्रिंट पे पाबंदियां थी, और जब स्पेशली जब इमरजेंसी लगी तो आई रिमेम्बर कपल ऑफ ब्लॉग्स, मैं नाम ले लेता हूँ, अबाब अलवी के ब्लॉग से पता चल जाता था कि अगली मीटिंग कहाँ पे हो रही है या अगला एहतजाज कहाँ पे हो रहा है. सो डू यू थिंक लॉयर्स मूवमेंट का एक रोल था ब्लॉगिंग को इस तरह से मेन स्ट्रीम करने का पाकिस्तान में उस वक्त में? आई थिंक राय, इफ यू नोटिस कि लॉयर्स मूवमेंट से पहले भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो ट्वीट्स और ब्लॉग्स हो रहे थे, वो सॉर्ट ऑफ अच्छा, आई काइंड ऑफ थिंक दैट इसकी वजह से जो है ना आपका ब्लॉगिंग का स्फेयर तबाह हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है. I think that a lot of hate speech was introduced on Twitter because of these political parties all fighting with each other, and the common man could not get their points across because उनके पास 500 600 ट्विटर आर्टिस्ट की वॉलंटियर आर्मीज हैं.
जो जो है ना आपको लथाड़ देंगे अगर आप कुछ भी उनके डिसएग्रीमेंट करें। तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे ना, जो एक्चुअल सिटीजन जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यूज थे, वो काइंड ऑफ डिसिपेट हो गए। I think lawyers movement brought political blogging to the forefront, yes. But I think उससे पहले भी, if you notice कि during the Musharraf emergency and those things when that happened, तो a lot of the, and if you remember, उससे पहले भी चीजें हो रही थी जो लोग as citizen journalists report कर रहे थे. One of the most famous instances was the Osama bin Laden raid as well. If you remember the guy who reported on that, the guy who wrote on that. तो ये सारी चीजें हो रही थी पहले से। आई थिंक ये पॉलिटिकल ब्लॉगिंग की वजह से एक्चुअली जो ब्लॉगिंग का वॉइस था और स्फेयर था वो तबाह हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। आपने पहले सवाल में थोड़ा सा कवर किया कि ओवर द इयर्स वी हैव सीन अ शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स टू शॉर्टर हाँ फॉर्म्स ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड वीडियोस। सो व्हाट डू यू थिंक ट्रिगर्ड दिस चेंज? क्या वजह बनी कि, और क्या अटेंशन यार, स्पैन कम एक्सेस होता गया या क्या वजह बनी? एक्सेस एक्सेस कन्वीनियंस, ठीक है। पहले पीपल यूज टू रीड एक्चुअल राइटर्स, पीपल यूज टू रीड पीपल जिनके कोई इंटेलेक्चुअल थॉट थी, और उनको कंसिडर किया जाता था कि हाँ ये बोल रहा है तो सही होगा, या ये बोल रहा है तो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगी। मगर उसके बाद से जब से ट्विटर पे सारे ही लोग शुरू हो गए, तो फिर तो इट जस्ट बिकेम नॉइज ना। राइट नाउ इज जस्ट नॉइज। अगर आप देखें तो वो जो इंटरेस्ट था कि एक आप ब्लॉग लिखते थे और उससे इम्पैक्ट आता था कम्युनिटी के अंदर, एंड थिंग्स वुड डिस्टर्ब एंड पीपल्स थॉट पैटर्न्स वुड चेंज, वो खत्म हो गया बिकॉज देयर इज सो मच नॉइज। और नॉइज आई है बिकॉज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेड इट सो कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी टू बिकम अ क्रिटिक, फॉर एवरीबडी टू बिकम अ रिव्यूअर, फॉर एवरीबडी टू से व्हाटएवर दे वांटेड विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। तो उसके बाद तो फिर नॉइज ही आनी थी। तो इस नॉइज के आने के बाद डू यू रियली थिंक के ब्लॉग्स हैव ट्रूली डाइड या ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? I don't think they've died. I didn't think I just think that they've become shortened. लोग लिखते कम है और बोलते ज्यादा है। आपके सारे prominent journalists are among them. With the rise of platforms like Twitter, Instagram, and now TikTok, how has the written word lost ground to visual and audio content? Is this shift irreversible? देखिए, अब अगर आप सोचें जरा सा, तो नैरेटिव जो है ना वो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ड्राइव करते हैं। सबसे पहले गूगल ड्राइव करता था नैरेटिव कि क्या आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है ना। तो वो सर्च रिजल्ट्स जो दिखाता था, एज वी ऑल नो, दे वर नॉट इवन 10% ऑफ द इंटरनेट। दैट इज व्हाई द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट विच वाज नॉट कवर्ड बाय गूगल वाज कॉल्ड द डार्क वेब, ठीक है। Hmm. तो अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया या टिकटॉक हो गया, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पहले पिक्चर्स इंट्रोड्यूस की, वीडियोस इंट्रोड्यूस किए, फिर इन्होंने उनकी ड्यूरेशन छोटी करते गए। रील फिनोमेना आ गया, ठीक है। अब रील फिनोमेना के आने की वजह से क्या हुआ कि आपका अटेंशन स्पैन जो है इस वक्त गोल्ड फिश की तरह हो गया है। तो अगर आप नई जनरेशन को देखें तो दे नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग और राइटिंग और रीडिंग लॉन्ग लॉन्ग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। दे जस्ट वांट एवरीथिंग इन 2 मिनट्स। तो नैश डेली हो गया या कोई और हो गया, वो सारा एक ही नैरेटिव से इन्फ्लुएंस्ड है कि अटेंशन स्पैन को छोटे से छोटा करते जाओ ताकि कंटेंट कंजम्पशन बढ़े। कंटेंट कंजम्पशन क्यों बढ़ानी है इन लोगों को? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मल्टीपल उनके पास एड स्पेस मिलती है। अगर उनको कंटेंट कंजम्पशन अगर 500 चीजें थी और अब आप 5 लाख चीजें देख रहे हैं दिन में, तो उनकी तो 5 लाख एड स्पेसेस बढ़ गई ना। तो इस Right. वजह से उन्होंने उस नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करके उसको छोटे से छोटा करते गए अटेंशन स्पैन को। एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस दैट इज हैपेंड एंड इज हैपनिंग। So, so the role attention span का कम होना has played in this whole process. So, एब्सोल्युटली is एब्सोल्युटली। is there a way कि writers can keep readers engaged in today's fast-paced digital world? कि writers को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर राइटर्स की फॉलोइंग है और राइटर्स के रीडर्स हैं तो वो तो इनको पढ़ेंगे। मगर अगर आप समझते हैं कि नई जनरेशन बैठ के आर्टिकल्स पढ़ती रहेगी या ये सारी चीजें करती रहेगी, तो दैट इज नॉट गॉन, दैट इज इरिवर्सिबल। दे वांट, आई मीन फॉर एग्जांपल माय 5 year old kid watches content on demand now. To Hmm. take him back from his content on demand lifestyle to 8 p.m. जब 8 बजे पीटीवी पे कार्टून आते थे, दैट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर। तो ये Hmm. अब रिवर्सिबल नहीं है। पीपल वांट थिंग्स फास्ट, पीपल हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स। इसकी वजह से आपकी मूवीज अफेक्ट हो गई हैं। नोबडी वांट्स टू वॉच अ 1.5 hour मूवी एनीमोर, दे वांट टू वॉच शॉर्ट फिल्म्स। आप देखें ना, नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स की ड्यूरेशन भी कम हो गई है, 22 मिनट Yeah. का एपिसोड हो गया है। तो व्हाई डू यू थिंक ऑल दिस इज हैपनिंग? व्हाई डू यू थिंक यूट्यूब हैज इंट्रोड्यूस यूट्यूब शॉर्ट्स जो 1 मिनट के होते हैं?
So इसी it's वजह a से है it's ना. it's kind of a segue from this, but मतलब थोड़ी सी हम कैसे करें, रास्ते से हट जाएंगे सवाल में, बट यू ऑल्सो मैनेज कम्युनिकेशन एंड पीआर फॉर फिल्म्स. सो कितना, अब जैसे आपने बताया कि लोगों का रुझान कम हो गया है, तो वो कितना मुश्किल हो गया अब लोगों को कन्विंस करना कि सिनेमा में आके फिल्म देखो. देखिए, एक तो इकोनॉमिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस, बिकॉज़ ऑब्वियसली 1000-1500 रुपए की टिकट है, और जो हम्म. है माशाल्लाह से नाचोस भी जो है वो 3000 रुपए के कर दिए गए हैं। कहीं-कहीं पे डील पे 2800 रुपए के मिल जाते हैं हमको, बड़ी या. हम लकी हैं तो ठीक है। तो अगर 4 लोगों की फैमिली जाके मूवी देखती है तो 10,000 रुपए का खर्चा है। तो इकोनॉमिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस। अटेंशन स्पैन प्लेज अनदर रोल। बच्चों को नहीं बैठ के देखनी डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे की मूवियाँ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। वो कोई मार्वल की मूवी भी डेढ़ घंटे से देखते हैं तो आधी मूवी के बाद बोर हो जाते हैं, उनको और पॉपकॉर्न चाहिए होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें प्ले करती हैं रोल, एंड इट हैज बैडली अफेक्टेड द सिनेमा बिजनेस, एंड इट हैज अफेक्टेड द सिनेमा बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर ये अफेक्ट नहीं होता ना तो नेटफ्लिक्स और ये दूसरे ओटीटीज कभी जान ही ना पकड़ते, और कभी हम्म. इसमें जो है ना इतनी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व ही नहीं होता, बिकॉज शुरू में तो सब सिनेमा में ही जाके देखना चाहते हैं, तो मूवी अब सब मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे देखना चाहते हैं, और वो बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, और उनके सबके पास ह्यूज बजट्स हैं, एंड दे आर नाउ एक्चुअली बाइंग स्ट्रेट टू ओटीटी फ्रॉम सिनेमा. अब वो हम्म. इट्स नॉट अ सेकंड रन प्लेटफॉर्म एनीमोर, इट्स एक्चुअली बिकम अ पैरेलल प्लेटफॉर्म टू सिनेमा. इतना पावर गेन कर गया है वो, ठीक है ना, बिकॉज किसी भी मुल्क में आई थिंक अगर चाइना में सबसे ज्यादा स्क्रीनें हैं तो वो कितनी होंगी, 25,000 30,000 स्क्रीनें होंगी, मगर मोबाइल्स तो बिलियंस है, तो वो उसको ओवरटेक कर गया बहुत पहले. Right. So let's talk about Mind Map Communications. You are the CEO of that company. किस तरह से शुरू हुआ, and now it does almost all things communication now, not just digital, uh, तो conventional media. माइंड मैप कम्युनिकेशंस शुरू हुआ था 2011-12 में. इट स्टार्टेड फ्रॉम द डेवलपमेंट सेक्टर. तो वी वर अ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग एंड नैरेटिव बेस्ड कंपनी, जो है नैरेटिव बेस्ड अवेयरनेस कैंपेन्स करती थी. वी स्टार्टेड विद यूएन वुमेन, आवर फर्स्ट कैंपेन वाज फॉर यूएन वुमेन, ठीक है. उसके बाद हमने मुताबिक डेवलपमेंट सेक्टर एजेंसीज के साथ काम किया, आज भी करते हैं. वी ब्रांच्ड आउट इनटू फैशन एंड लाइफस्टाइल, दैट ग्रू अ लॉट. देन कोविड के टाइम पे जो है वी हैड टू अगेन पिवट, बिकॉज पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, तो सारे ब्रांड्स बंद होने पे आ गए थे, और सबसे पहली जो चीज़ बंद होती है वो मार्केटिंग बंद होती है. तो देन वी पिवटेड इनटू पीआर, एंड वी पिवटेड इनटू द हेल्थ केयर सेक्टर. तो अभी हम Hmm. आगा खान हॉस्पिटल की भी पीआर हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ भी हम काम करते हैं. अभी हमने एक वॉकाथॉन भी किया है विद पेशेंट्स एड फाउंडेशन एज वेल. तो वी ब्रांच्ड आउट इनटू सेवरल डिफरेंट एरियाज एंड सेवरल डिफरेंट इंडस्ट्रीज. पीआई की भी पीआर की हमने 3 साल तक, तो एविएशन में भी हमें काफ़ी नॉलेज ऑफ फुटहोल्ड है. तो दैट इज द स्टोरी ऑफ माइंड मैप कम्युनिकेशंस, एंड इट इज द स्टोरी ऑफ सेवरल pivots from a narrative based digital media company to a digital media marketing firm to a PR firm to now a firm that is now going into production as well of our Okay, own that's great. content. Great. So as a digital communication strategist, do you still think कि blogs still have a place somewhere in that? अगर हैं तो brands उसको किस तरह से effectively use कर सकते हैं आज के दौर में? नहीं The है ship सर has जगह. sailed. The नहीं ship है. has sailed. हाँ, the ship has sailed 5 years ago. Okay. वो अभी तक कॉन्वर्जेशन इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान नॉर्मली दुनिया से 5 साल पीछे है. तो वो कॉन्वर्सेशन अभी तक हम लोग कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. बॉस, ये नहीं हो सकता. अ, आगे चीजें चली गई. अब नाउ ब्लॉग, अभी आपको मैं एक बोलूं, किसी मैगजीन का आर्टिकल भी तो ब्लॉग ही है ना. Hmm. देखा जाए तो किसी न्यूज़पेपर का डिजिटल आर्टिकल भी तो ब्लॉग ही है ना. तो वो जो Hmm. डिफरेंशिएशन थी ना, वो डिफरेंशिएशन खत्म हो गई है अब. पहले डिफरेंशिएशन होती थी कि ये प्रिंट है, Yeah. ये ब्लॉग है, ये है, ये है. तो वो डिफरेंशिएशन अब खत्म हो गई, बिकॉज एवरीबडी इज नाउ डिजिटल. प्रिंट तो खत्म हो गया. Right. सो So एवरीथिंग इज नाउ अ ब्लॉग. तो ब्लॉग मरा नहीं है, ब्लॉग इवॉल्व हो गया इनटू मेन स्ट्रीम, एंड into एब्जॉर्ब हो गया mainstream. मेन स्ट्रीम. So you're saying that written word is still alive, blog ऑफ might कोर्स not इट be. इज. So Written word is still alive, blog is also alive, but it has now evolved into mainstream. So every now news channel, every now newspaper like Dawn, Tribune, they're all running their own online articles and blog sections, which are pretty much the same thing. कोई hmm, फर्क नहीं रह गया अब. पहले वो डिफरेंशिएशन होता था कि आपको even अखबार Dawn, खोल के पढ़ना है.
Even Dawn has probably renamed their blog section to Prism now. It's not या Dawn blog anymore. खत्म हो गया ना वो, So बिकॉज वो मेन yeah. स्ट्रीम हो गया ना. जब एक चीज मेन स्ट्रीम हो जाएगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. उसकी नीश जो थी वो वाज टेकन ओवर बाय द मेन स्ट्रीम, बट एवरीबॉडी वांटेड टू गो डिजिटल. सो व्हेन Hmm. एवरीबॉडी वांट्स टू गो डिजिटल, तो वो चाहे वो 500 वर्ड का ब्लॉग लिखे या वो 300 वर्ड का आर्टिकल लिखे या 750 वर्ड का आर्टिकल लिखे, इट मींस सेम थिंग, फॉर्म तो वही है. So अगर हम ब्रांड्स या कंटेंट सॉरी ब्रांड या क्लाइंट साइड्स की तरफ से अगर देखें, सो व्हाट काइंड ऑफ रिटन कंटेंट दे हैव मूव टू इन डिजिटल मीडिया, इस वक्त क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं फ्रॉम अ ब्रांड एंड क्लाइंट साइड पॉइंट ऑफ व्यू? सो ब्रांड्स आर नाउ डूइंग अवेयरनेस कैंपेन्स, जिसमें वो अपने अवेयरनेस के पॉइंट्स को उजागर करना चाहते हैं. अगर वो कोई डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, अगर वो एजुकेशनल सेक्टर के लोग हैं, तो वो अभी भी उसी तरीके से जो है वो प्लांट करते हैं और चीज़ें करते हैं, ब्लॉग्स, एंड दे इनवाइट प्रेस एंड मीडिया टू राइट अबाउट द इनिशिएटिव्स. इसके बाद जो है रिव्यूज़ पे आ जाते हैं वापस. तो वो रिव्यूज़ के ऊपर जो है फोकस होता है कि आप फला मूवी की पीआर कर रहे हैं, तो इसके रिव्यूज जो सारे प्रोमिनेंट मूवी रिव्यूअर्स हैं उनको करना चाहिए, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों. यू कैन नॉट प्लांट रिव्यूज. But and I mean, I don't know if somebody does it, but I don't agree with that at all. And none of the journalistic community agrees with that also. And I think they resisted to a great deal. That's why our reviews are still very balanced. Uh, इस तरह की चीज़ें अब होना शुरू हो गई हैं. अगर आप टीवी ड्रामास में देखें, तो टीवी ड्रामास के ऊपर आर्टिकल्स, कैरेक्टर्स के ऊपर आर्टिकल्स, इंट्रोड्यूसिंग द स्टोरी, इंट्रोड्यूसिंग द नैरेटिव, ये सब हो रहा है. सो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन, and it is going on, and it is something that is quite prolific, and it's still being used extensively by brands. So it's not a question कि brand use करेगा या नहीं करेगा, but वो जो word और वो जो niche है ना ब्लॉगर की, वो खत्म हो गई है. बिकॉज हमने खुद ने, अगेन आई विल से दिस अगेन, कि किसी को इंस्टाग्राम यूज करना है, या किसी को ट्विटर पे यूज करना है, या किसी को टिकटॉक पे यूज करना है, तो वो सबको ब्लॉगर कह रहे थे. तो ब्लॉगर Hmm. तो वो होता था जो लिखता था. Yes. ये तो नहीं ब्लॉगिंग होती है ना. पुटिंग अप अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम इज नॉट ब्लॉगिंग, पुटिंग अप अ ट्वीट इज नॉट ब्लॉगिंग, एंड पुटिंग अप क्या कहते हैं आपका टिकटॉक रील्स एंड स्टफ लाइक दैट इज नॉट ब्लॉगिंग. Hmm. ठीक है ना. तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन अगेन मैं कहूँगा कि हमारा काफ़ी सोसाइटी का जायलानपन है, कि अभी तक वो जो है ना, वो तो अब देखिए ना. अब मैं चले अभी का आज का ओपिनियन ले लें, तो आप आज का एग्जाम्पल ले लें. अब आपने इसको बोला पॉडकास्ट. Yeah. ये पॉडकास्ट नहीं है. It's a video पॉडकास्ट cast. यस, पॉडकास्ट ऑडियो It's a होता video है. cast. ठीक है ना. तो Yes. हमने डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया ना. अब आप भी बोल रहे हैं ये पॉडकास्ट है, भाई ये नहीं है पॉडकास्ट. Yeah. बाकी सारे लोग भी बोल रहे हैं मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और वो वीडियो पे बैठे हुए हैं, वी Yeah. लॉगिंग कर रहे हैं, वी कास्ट कर रहे हैं, बोले पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं. पॉडकास्ट ऑडियो होता है भाई. तो आई मीन हमने ये सारे डिफरेंशिएशन खत्म किए हैं. हमने ये सारे जो नीशेस थे खुद ही खत्म किए. हमें अब हर बंदे को हम ब्लॉगर बोलते हैं, तो फिर वो तो इट डजेंट, वो डाइल्यूट ही हो जाएगा ना फिर तो. ठीक है. फिर तो जो 3,000 रुपए का एक ट्वीट कर रहा है वो भी ब्लॉगर है. ठीक है. Hmm. और अगर जो Yeah. और कुछ कर रहा है तो वो भी ब्लॉगर है, तो सब ब्लॉगर ही हैं फिर. तो वो फिर डाइल्यूट हो जाएगी चीज. जब आप कमर्शियलिज्म लाएंगे एक चीज के अंदर, तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक. सो अब जो पॉपुलर मीडियम्स हैं इस वक्त के, अगर उनके या कंटेंट फॉर्मेट्स उनकी अगर बात कर ली जाए, पॉडकास्ट हो गई या वीडियो कास्ट हो गई, डिफरेंट वीडियो हो गई, व्लॉग्स हो गए, इन सब के होते हुए जो थोड़ी बहुत रिटन वर्ड की वैल्यू है, कैन कैन दैट स्टिल ड्राइव सम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन एंड एंगेजमेंट, या वो एक नीच तक ही महदूद होकर रह जाएगी? राइट. रिटन वर्ड तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा ना. रिटन वर्ड तो नहीं खत्म हो रहा. अगर आप एक इंस्टा पोस्ट भी लगाते हैं, तो उसका कैप्शन बहुत मैटर करता है. अगर आप कोई मीम भी बनाते हैं शायरी की, तो उसमें शायरी मैटर करती है. तो रिटन वर्ड तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. रिटन वर्ड वर्ड अब जिस तरह यूज हो रहा है, वो यूजेज चेंज हो गया है, मगर रिटन वर्ड इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज नो डिस्क्वालिफाइंग दैट एट ऑल. तो वो नहीं खत्म होने वाला. ठीक है ना. ठीक अब है. आप अगर एक वीलॉग की भी बात करते हो, तो वीलॉग की भी स्क्रिप्ट तो रिटन वर्ड में ही होती है ना. ऑल्सो विद इंस्टाग्राम ने जिस तरह से भी शुरू कर दिया है कि वो अपने कीवर्ड्स लगाने हैं रादर देन द हैशटैग, सो रिटन वर्ड की स्टिल वैल्यू है, एंड दोबारा नहीं इंस्टाग्राम भी थोड़ा रिटन सा जा रहा है लॉन्ग फॉर्म कैप्शंस रिटन की वर्ड तरफ. नहीं, रिटन वर्ड की वैल्यू हमेशा रह ही रहा है. बिकॉज लिखावट जो है ना, उसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती. लिखावट के अंदर ये करिश्मा होता है कि दे कैन मेक यू विजुअलाइज द सिचुएशन. हम्म. Making you visualize the situation is far more beautiful than seeing the situation in its reality.
राइट? तो Hmm. वो मैजिक कभी भी नहीं जाएगा रिटन वर्ड का. इट्स जस्ट दैट द यूसेज ऑफ इट हैज चेंज्ड, द टूल्स फॉर इट हैज चेंज्ड, इट्स इनकॉर्पोरेशन हैज चेंज्ड. Right. अब सही. आप बताएं, आपने आज कितने आर्टिकल पढ़े दो. और वीडियो कितने देखे? वीडियो आज सुबह से कोई नहीं देखा, इसी से सरप्राइज नहीं, नहीं, वीडियो भी दो देखे. वीडियो रील्स भी दो कितनी देखी? देखी है. वीडियो दो सुनी है, देखी नहीं है, दो सुनी है. तो या, हाँ. तो लेकिन अब वो यही लंबी है ना कि हाँ, लंबी मगर वो वीडियो थी. इक्वल हो गई ना. अब इक्वल हो गई ना हाँ. दोनों चीजें, दो आर्टिकल दो वीडियो. अब आप है. तो फिर भी बहुत बहुत ज्यादा इनिशिएटेड है लॉन्ग फॉर्म को पढ़ने में, और पढ़ना चाहते हैं, यू पैशनेट अबाउट दिस. या. आम बंदा तो सर रील्स में ही खुश है. हाँ. आम बंदा रील में तो खुश है, बस बिल्कुल ठीक है. तो बस जो सही. अब आप देख लेना कि इंस्टाग्राम की टोटल पॉपुलेशन 2023 के शुरू एंड में जो रिपोर्ट आई थी, 19.3 मिलियन थी पाकिस्तान. हम्म. टिकटॉक की 54.1 मिलियन है. हम्म. सही कह रहे हैं. राइट. इसीलिए तो उन्होंने रील्स बनाई है. रील्स एंड स्टोरीज के मशहूर होने की वजह ही शायद ये है. हाँ, तो वो पीछे रह गए थे ना, तो इसीलिए तो उन्होंने रील्स बनाई है. टिकटॉक हैड बिकम एन आई इन माय ओपिनियन, टिकटॉक इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिस वर्ल्ड इट टुडे. इज. इट इज. और इसकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो नॉर्मली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एलीट से मैसेज की तरफ आता है. दिस वाज ग्राउंड अप, ये मैसेज से एलीट की तरफ गया. अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है बाय द वे. दिस डिडंट अच्छा. हैपन लाइक दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आप स्टडी करें तो ऑल हम्म. ओवर द वर्ल्ड द टिकटॉक डेमोग्राफिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर इन पाकिस्तान. या. ट्रू. But अच्छा, Pakistan रिसेंटली. mein it has been a very, very beneficial thing for the masses also, because a lot of kids are supporting themselves through TikTok and they're या. earning very, very decent money. And also, I think to reach masses for a mass level campaign, I think Instagram can, sorry, TikTok can play a massive role. हमने थोड़ा सा Of टेस्ट course, वाटर्स किए थे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स के, लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग of करनी है एंड ऑल, course. तो थोड़ी बहुत कोशिश की गई थी उसकी. Depends on what your product is, depends on what the price point of the service or the यस. product you're selling is. But yeah, the mass reach is there. मैंने बता दिया numbers आपको, 19.3 million versus 54 million. So या. ट्रू. अच्छा, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि स्टिल देयर इज अ चांस के रिसर्जेंस हो जाए लॉन्ग फॉर्म का. स्पेशली जब मैंने ये सबस्टैक जैसे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना शुरू किया, देखा है कि वहां पे भी लोग दोबारा से लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे हैं. सो आपके ख्याल में पाकिस्तान में, कुछ चांस पाकिस्तान में, लाइक ऐसा नागी लिखता है कि मैंने तो स्पोर्ट्स के ज्यादा पढ़ने शुरू किए, ऐसा नागी ने जब से पीसीबी से वो छोड़ के आया तो वो लिख रहा है. और भी लोग हैं जो लिख रहे हैं. इवन उस दिन उस्मान समीउद्दीन वाज एडवाइजिंग समवन ऑन हिज पॉडकास्ट कि अगर आपने क्रिकेट पे लिखना है तो यू स्टार्ट राइटिंग ऑन सबस्टैक. सो आप एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल तो बिल्ड करनी शुरू करो. तो क्या आपको लग रहा है कि इससे कोई रिसर्जेंस का चांस है रिटन ब्लॉग्स का या न्यूज़लेटर्स का एक नीश कैपेसिटी में? देखिए मैं तो नंबर्स का आदमी हूँ, तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि उनकी व्यूअरशिप कितनी है. हाँ. ठीक है. इफ द व्यूअरशिप इज नॉट इवन द व्यूअरशिप ऑफ अ सिंगल इंस्टाग्राम रील, तो फिर द हम्म. आंसर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. मेरा क्या पर्सनल प्रेफरेंस है ये अलग बात है. मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं अभी भी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं अभी भी ये सारी चीजें करता हूँ. बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी नीश ऑडियंस. तो हम्म. रिसर्जेंस जब भी हो सकती है जब मासेस उसको टेकअप करे. नीश ऑडियंस के साथ रिसर्जेंस नहीं कहलाती किसी चीज की. सो बेसिकली बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी. सिंपल सी बात है, नंबर्स की बात है ना, राइट? राइट. नंबर्स की ट्रू. बात है. पैशन के तौर पे तो अभी तक लोग मिर्जा गालिब को भी पढ़ते हैं. ठीक है ना. हम्म. तो वो इट्स समथिंग एल्स. वही मैं कह रहा हूँ ना, नीश रिसर्जेंस जो होती है चीज की, वो नीश से नहीं हो सकती. रिसर्जेंस के लिए आपको यूजेज चाहिए होती है, नंबर्स चाहिए होते हैं, मासेस चाहिए होते हैं, जो नहीं है राइट रिटन वर्ड के लिए. आई एम सॉरी. आप अगर आप कोई ब्लॉग रन करते हैं तो आपको खुद को पता होगा कितनी ट्रैफिक आती है रिटन वर्ड, क्या आई लोग पढ़ते हैं. I get more traffic on my Instagram rather than my website. So तो yeah. बात खत्म. द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू देन. So with so many options of multimedia content, like stories हो गई, social media posts हो गई, vlogs हो गए, video and podcast हो गई, जिसने डिजिटल कम्युनिकेशन का लैंडस्केप जो है वो completely चेंज कर दिया. अब इतनी सारी ऑप्शंस में से, if to for a layman to understand कि मेरे लिए बेहतर कौन सी है and how can I strike a balance, उसको किस तरह से किया जा सकता है? राय उसमें डिपेंड करता है लेमैन को करना क्या है. अगर ओके. लेमैन को सिर्फ अपना पॉइंट अक्रॉस करना है तो वो एक वीडियो बना के कर सकता है. अगर हम्म. लेमैन को
जो है कोई ब्रांड के साथ काम करना है, वो कोई ब्रांड बना रहा है, इज एन एंटरप्रेन्योर, तो he'll have to use the brand's डेमोग्राफिक, एंड he'll have to see कि डेमोग्राफिक कहाँ पे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किधर इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम फैशन की बात कर लेते हैं, तो 2,000 रुपए की अगर आप कुर्ती बेच रहे हैं, यू शुड बी ऑन टिकटॉक। अगर आप 50,000 रुपए का सूट बेच रहे हैं ऑनवर्ड्स, तो देन यू शुड बी ऑन इंस्टाग्राम। हम्म। डेमोग्राफिक एंड हु योर टारगेट मार्केट इज रियली मैटर्स फॉर एनीथिंग दैट यू डू। तो इस तरह इवैल्यूएट करना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे Right. So we agree that there is a room for both visual and written content. दोनों की हैं। ऑफ कोर्स, तादाद में फर्क आ सकता है. So today, what do you see the future holds for digital communication, especially in Pakistan? What is the future of digital communication in Pakistan? What is next? फ्यूचर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान इज मोर एंड मोर सेंसरशिप। Yeah. जब डिजिटल ही दैट नहीं इज द होगा तो फ्यूचर। कम्युनिकेशन क्या होगी? एग्जैक्टली। राइट. तो तो ये फ्यूचर है हमारा। तो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनको कोई नीश यूज कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, नॉट एवरीबॉडी हैज वीपीएन्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ इज गोइंग टू हैपन। बट देन द मेन स्ट्रीम यूसेज ऑफ डिजिटल मीडिया, अगर आप डिजिटल मीडिया बंद ही कर देंगे तो कहाँ से आएगी? तो हम क्या राइट. बात कर रहे हैं बैठ? ट्विटर बंद कर दिया ना, हाँ, ऑफिशियली तो बंद है, प्राइम मिनिस्टर यूज कर लेते हैं, आम इंसान के लिए वो बंद ठीक है, मगर है. बंद तो है ना। आम तो इंसान के बंद है लिए तो बंद. फिर बंद है, तो फिर उसकी फ्यूचर के बारे में क्या बात करेंगे? दुकान आपने बंद कर दी है, शटर डाउन कर दिया, फिर क्या उसका फ्यूचर है? ट्रू. तो वो, तो आई मीन, इसके अलावा इंटरनेट बंद कर देते हैं, बात बात पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, मतलब हॉलीडेज पे बंद कर देते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज में बंद कर देते हैं, पब्लिक हॉलीडेज पे इंटरनेट बंद कर देते हैं। इस तरह थोड़ी कोई ग्रोथ हो सकती है इस मीडियम की। कैसे ग्रोथ होगी रिसेंटली भाई? रिसेंटली कोई एग्जाम था, प्रॉब्ली एम कैट का था, उस दिन इंटरनेट बंद हुआ था. सर तो लोग आपको पता है, चीटिंग करने लगे. ई कॉमर्स सेल्स आर डाउन, ब्रांड्स की ई कॉमर्स सेल्स आर डाउन बाय 35 to 40% सिंस जून। ऐसे ही है. ऐसे ही है. ई कॉमर्स सेल्स, ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स हैव सीन अ मैसिव हिट. कि मुझे ऑनलाइन जो ऑर्डर आ रहे थे वो नहीं आ रहे, सो देयर इज अ मैसिव हिट. सो एक मस्त चक्कर है. थोड़ा सा अब वापस आते हैं ऑन फैसल कपाडिया हिमसेल्फ. डिग्री इन इकोनॉमिक्स, और ब्लॉगिंग करने से पहले भी थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप वाला मामला था, एंड देन A स्टार्टिंग degree, विद. a degree, a degree in management information systems and economics. ओके. ठीक है, वो पहले वाला शायद मैं भूल गया था क्या था. मुझे इकोनॉमिक्स याद रह गया. तो हाँ, देन स्टार्टिंग ब्लॉगिंग, एंड देन माइंड मैप कम्युनिकेशन का आना, देन सीईओ बनना. तो इस पूरी जर्नी में ब्लॉगिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, एंड इन टर्म्स ऑफ योर ओन पर्सनल विजिबिलिटी. और हाँ, एक चीज मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया था. अगर पाकिस्तान का पहला नहीं, तो वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू वेब शोज भी आपने शुरू किया था, वो लेट बैक शो के नाम हाँ। से. तो It वो won, कहाँ it से won आइडिया Google's, आया? it won Google's best video cast in 2010. या. सो वो, एंड यू गाइस आल्सो वॉन द अवार्ड फॉर दैट. सो वो Yeah. सब आइडियाज किस तरह से है, इन सब में आपका फैसल कपाडिया द ब्लॉगर का क्या रोल था? वो फैसल कपाडिया जो डॉन के लिए लिख रहा था या तो फ्राइडे टाइम्स के लिए लिख I रहा था, think, उसने कितना I हेल्प think किया? वो, आई थिंक देखिए, लिखना तो मेरा पैशन है, मैं तो बचपन से लिखता हूँ। तो वो एक आउटलेट था। अब वो जो वीडियो क्लास जो बनाया गया था, वो बिकॉज वी लव टॉकिंग अबाउट स्टफ, मी एंड नवाब, तो वी डिसाइडेड कि हम जो है ना बैठ के एक वीडियो क्लास बनाते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद जो है उसके मुताबिक डिफरेंट वेरिएशंस भी आए जो हम लोगों ने किए। बट आई थिंक दैट राइटिंग से प्रोमिनेंस तो मैं नहीं कहूँगा, इज्जत बहुत मिली। बिकॉज उस जमाने में एक राइटर की, एक जर्नलिस्ट की, एक बंदा जो किसी चीज पे कमेंट करता है, उसकी एक फॉलोइंग है इन, एंड वो डॉन के लिए लिख रहा है, ट्रिब्यून के लिए लिख रहा है, फ्राइडे टाइम्स के लिए लिख रहा है, फिर हफ पोस्ट के लिए भी लिख रहा है, अनियन के भी लिखा, सब कुछ किया अपने खुद के। मेरे 700+ ब्लॉग्स हैं। तो वो फॉलोइंग जो थी वो बड़ी, इट गेव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वैलिडेशन एज अ राइटर, हम्म. एज अ पर्सन दैट लेड टू अ लॉट ऑफ पर्सनल ग्रोथ. So, it led me to experiment, it led me to do other things, and it led to the formation of something like mind map communications. But baseline तो passion तो writing ही था, जिसकी वजह से validation मिली और confidence मिला कि हाँ यार, people want to read, people want to listen, people want to talk about stuff, people want to engage in conversation with you.
So the rest of the things are just vertical integrations of that. अगर आप scientifically भी देखें तो उसको. Okay. So, अगर उस वक्त को याद किया जाए, so what are some of your favorite memories from your time as a blogger, and are there any posts or projects that stand out to you as particularly meaningful? Basically, देखें lot of fond memories over the years. Um, Karachi Metro Blogs was the first platform that I ever found a community in and friends in. I've met Awab, I met Imtiaz through Karachi Metro Blogs. I met other people through Karachi Metro Blogs. Then Chalk became a thing. I joined Chalk as a writer and a blogger. So I met a lot of people there. Then I was part of the first blogging platform for TV, for ARC TV with Ali Tim. Vajat Rao was heading ARC TV at that time. It was called Agahi. वो भी एक Hmm. ब्लॉग था जो हमने बनाया. That was probably the first entertainment blog in Pakistan. So there are lots of fond memories. T2F is also a very fond memory. बहुत सारे लोग T2F की वजह से बने, बहुत सारे लोग सबीन महमूद और T2F की वजह से मिले. माइंड मैप का पहला ऑफिस T2F में एक चेयर और एक टेबल था. So lots and lots of very beautiful, very fond memories, and lots of people coming together to do amazing things like the social media summit, like flood relief, like lots of other things that we did together. And we are still all very good friends. Uh, MHDF Karachi, the foodies group भी बना. Must have desi food. मतलब क्या किया हम लोगों ने over the years. Some wonderful memories. Before going into all of this and before the PR and the publicist era and all of that, we did a lot of really fun things together, and those are really, really memorable times. वो बिरयानी of the seas, वो अली रजा अब्दी, वो सारी चीजें जो है ना याद आती हैं. वो बहुत अच्छा जमाना था. वो बड़ा ओपन और इंक्लूसिव जमाना था. एंड वो इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हो रहा था कि मी बीइंग इन लाहौर आई कुड रिलेट टू दैट. मैं उससे बड़ा कनेक्टेड था. व्हेन आई ऑर्गेनिक था ना. एंड ऑर्गेनिक था. व्हेन आई मेट ऑल ऑफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, वो मेरी ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों से पहली मर्तबा मिल रहा हाँ, हूँ. बिल्कुल जितने भी ऐसा ही लोगों था के आपने बिकॉज नाम लिया, ऑर्गेनिक था बिल्कुल ना. वैसे नहीं था कि मैं आप. कम लोग या थे. मुझे याद है पहले पहले 10 ट्विटरर्स में से शायद मैं था पाकिस्तान से, इफ आई रिमेम्बर या करेक्टली. तो बहुत छोटी कम्युनिटी थी ना. नॉइज नहीं थी. तो हम सब एक दूसरे की लाइव्स को फॉलो करते थे. आपको याद है पहली या ग्लोबल वॉइस कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे मिला था. या बट वी ऑलरेडी न्यू ईच अदर बिकॉज वी वर फॉलोइंग ईच अदर. वी यूज्ड टू रीड अबाउट ईच अदर स्टफ एंड उससे व्हाट पहले वाज गोइंग एक एक ऑन. छोटी सी मुलाकात थी वो ब्लॉग अवार्ड्स की. हाँ. उसके बाद 2015 में हम ब्लॉग कॉन्फ्रेंस पे, ग्लोबल वॉइसेस कॉन्फ्रेंस पे मिले थे. एंड या बट वी नो ईच अदर लाइक एनीथिंग. अच्छा, हाँ, बिकॉज कम्युनिटी मेरी थी एक. ना. हाँ. कम्युनिटी में यही होता है राय. कम्युनिटी में ना, चाहे वो आर्टिस्ट की कम्युनिटी हो, राइटर्स की कम्युनिटी हो, ब्लॉगर्स की कम्युनिटी हो, कम्युनिटी में ना बड़ी स्ट्रेंथ होती है. जब वो हम्म. कम्युनिटी डाइल्यूट हो जाती है ना, इट बिकम्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस, तो वो फिर जो है ना उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता राइट. अच्छा, मेरी अगर देर आर कपल ऑफ ब्लॉग्स जो मुझे याद हैं, बट जो मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट जो मुझे याद रह जाता है आपका आर्टिकल, वो ब्लॉग नहीं था, वो फ्राइडे टाइम्स में आपने एक अपना लिखा था कि ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया 2009 चैंपियंस ट्रॉफी मैच, उस कमरे में क्या हो रहा था जिस कमरे में आप मैच देख रहे थे, कि एक आपका दोस्त बेहोश हो रहा है कुछ. वो दैट वाज सो मच. एक तो वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, एंड है. हाँ. उसके एंड पे देयर वाज अ लाइन के आई कांट स्टैंड पाकिस्तान इंडिया फाइनल इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज़ दिस वाज टू मच फॉर मी. तो एंड इट वो उस एंड तरह इट की होल्ड्स ट्रू टू दिस ऑर्गेनिक डे. मेमोरीज. या एंड इट होल्ड्स ट्रू टू दिस डे. कितने लोग अब या यही बात इंस्टा पे लिखते हैं, अपनी इंस्टा स्टोरीज पे लगाते हैं कि भाई ये इतना या प्रेशर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता. नहीं बर्दाश्त होता. ट्रू दैट, हाँ. ट्रू दैट. हाँ. और उस जमाने में तो प्रेशर किसी और ही लेवल का था बिकॉज टीम्स भी इक्वली मैच थी. तो दैट तो वाज क्रेजी. या ट्रू. वो दैट तो डू यू रिमेंबर दैट टाइम? आर 1992 टीम, आर दोस टीम्स, मतलब दे वर एट अ पार विद एनी टीम इन द वर्ल्ड. तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता था उस जमाने में. या तो बेसिकली वही था ना, ऑर्गेनिक था. हम जो कर रहे होते थे उसके बारे में लिख रहे होते थे. ट्रू, ट्रू, ट्रू. अच्छा, ये था. अभी आपने जिक्र किया दैट यू स्टिल रीड एंड यू लाइक टू रीड बुक्स, तो आपकी पर्सनल एक चॉइस है. सो डू यू राइट, sorry, do you, what kind of books that you are reading these days, and what kind of, let's say, long form articles and writers you are reading these days? यार, I still love to actually read old articles from Irfan Hussain and Adesha Mm. Kawasji. I still write Mm. to, I still like to, I'm now into a lot of biographies. So I like to read biographies. I like to watch Mm. documentaries and read biographies of people who have done things.
अभी मैं रिसेंटली किसकी पढ़ रहा था बायोग्राफी, मैं इलॉन मस्क की किताब पढ़ रहा था अभी रिसेंटली। ठीक है। हम्म, और भी आई लाइक टू रीड फिक्शन ऑल्सो, तो वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ। I like Robert Ludlum. I like Tom Clancy. I like all of I like Isaac Asimov. Science fiction में पढ़ता हूँ. There are lots of other authors which I cannot remember right now, but I am a हम्म, prolific reader. I love to read. And अब वही है कि मेरी भी रीडिंग जो है बुक से डिजिटल पे चली गई है. Although people hate it, some of my friends are like कि ये ई बुक जो है ना हमसे नहीं पढ़ी जाती. तुम किताब दो, अगर किसी किताब पढ़नी है तो किताब दो. तो वो हम्म, जमाना भी अब चला गया, बिकॉज अब वो राय अब ये हो गया कि आप किसी ट्रिप पे भी जाते हैं ना, तो आपके साथ वो किंडल होता है, और आप वो 5-5 मिनट के जो आपको गैप्स मिलते हैं काम के दौरान या वेकेशन पे भी, उसमें आप पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं. तो ऑन एन एवरेज ट्रिप आई फिनिश लाइक 3 4 5 बुक्स लाइक हम्म, दैट. ठीक. सो सो दैट्स हाउ इट इज नाउ. ओके, सो हम आखिरी सवाल से पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि स्टिल रिटन वर्ड की वैल्यू है, और अगर मुझे थोड़ा लिखना है, ज्यादा लिखना है, जो भी लिखना है, अगर कोई नया लिखने वाला आपसे कोई टिप मांगे कि मैं किस तरह से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करूं, स्पेशली डिजिटल कम्युनिकेशन के हवाले से, वो चाहे कैप्शंस लिखने हो या जो भी, तो व्हाट इज योर टिप फॉर दैट? माई टिप फॉर दैट वुड बी दैट अगर आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है तो डू नॉट गो फॉर AI टूल्स लाइक चैट GPT, बिकॉज दे डोंट हैव अ सोल. वो आपका कॉन्टेक्स्ट पूरा गायब कर देते हैं. इट साउंड्स रोबोटिक, रोबोटिक. यू कैन इवन टेल दैट इट्स बीन रिटन बाय एन AI ऐप. मेरा हम्म, यही होगा एडवाइस कि आप जिस चीज़ के बारे में भी लिख रहे हैं उसको रिसर्च करें. या तो चलें आपने खुद एक्सपीरियंस की और आप अपने एक्सपीरियंसेस से लिख रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस ही रिसर्च हो गया ना. मगर आप जिस चीज़ के ऊपर भी लिख रहे हैं रिसर्च करें. उस जगह को जाके एक्सपीरियंस करें. अगर आप उस जगह के ऊपर लिख रहे हैं, चाहे वो एक बनकबाब का ठेला ही क्यों ना हो, ठीक है, उससे आपकी राइटिंग में नुअंस आएगा, इमोशन आएगा. और जब इमोशन आएगा ना, तो वो फिर ट्रांसलेट होता है विजुअल में पढ़ने वाले के लिए. हम्म, अगर आप गूगल से चीज़ें निकाल के और गूगल से रिसर्च करके लिखना शुरू कर देंगे, तो आपकी कभी भी राइटिंग में वो नुअंस और वो इमोशन आएगा ही नहीं. वो आप रीडर को फील नहीं करा सकते जो आप फील कर रहे हो, अनलेस यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ. राइट. अच्छा, एक चीज आपने कही थी कि यू स्टिल राइट, सो लेट्स हाइपोथेटिकली थिंक के ब्लॉग्स अभी खत्म नहीं हुए, मतलब अभी भी उसी तरह से मौजूद हैं. सो आज भी अगर फैसल कपाड़िया लिख रहे होते तो क्या, किन टॉपिक्स पे लिख रहे होते? अब मैं हमेशा से वही सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर लिखता हूँ. कभी कभार अगर मुझे कोई बहुत ही कोई आर्ट पीस या मूवी पसंद आ गई, तो उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि मुझे ये अच्छा लगा इसमें, मुझे वो अच्छा लगा इसमें. तो मैं अभी भी उसी तरीके से लिखता हूँ जिस तरह मैं पहले लिखता था. अब फ़र्क सिर्फ़ ये आ गया कि पहले मैं ब्लॉग पे लिखता था, अब वो ब्लॉग पे लिख के मैं उसका छोटा-सा पैराग्राफ बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर देता हूँ लिंक के साथ. तो प्लेटफ़ॉर्म टू द ऑडियंस हैज़ चेंज्ड, बट आई एम स्टिल राइटिंग एंड आई विल कंटिन्यू टू राइट. अभी आई एम राइटिंग ऑन स्क्रीन प्लेज़ आल्सो. तो हाँ. मैं अब स्क्रीन प्लेज़ भी लिख रहा हूँ, मूवी शॉर्ट फ़िल्म्स के प्लॉट्स भी लिख रहा हूँ. तो लिख तो रहा हूँ मैं, लिखना तो मेरा बेस है, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकता. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पब्लिसिस्ट और पीआर और ये सब बाद में, प्रेडोमिनेटली आई एम अ राइटर. या. चलो, thank you so much, Faisal, for नॉट your एट ऑल. time. It was always a pleasure talking to you, and I hope I'll see you at SOT, which is coming in like 4 weeks time in Karachi. So I'll definitely would like to see you there. ठीक है, तो वो हम लोग पीआर लोग, जो लोग होते हैं ना पीआर के, वो अब बोलते हैं कि जब उनको कहीं इनवाइट किया जाता है कि इसका कोई बजट है. बट नो, आई एम नॉट लाइक दैट स्टिल. सो आई वुड लव टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड, सो आई विल डेफिनेटली कम ओवर. चलो, thank you so much, Anil. बहुत शुक्रिया. ओके, खुदा थैंक हाफिज. यू. ओके. Take care. खुदा हाफिज. So that was today's episode. If you like this one, please share it with your friends and families. Like this video, press that subscribe button along with that bell icon. And if you have any feedback, please use the comment section for that. I'll see you in the next one. Until then, Khuda Hafiz.